Good morning, class 8th. Today we are going to start the verbs, conditionals. Today is 30th and it is Friday. So we'll start with this topic. I've sent you two practice exercises that you have to do in your notebooks, and if you have already written the rules of the tenses, no need to write it again. Okay, just write the definitions, and if you have done it, so don't write it again. If you have already done all the rules and rules of verb tenses, so no need to do it again. You just write verbs, modals, definition and different meanings, and few examples. Okay, so I will send you the exercises of modals also today. So we start with the verbs conditionals. Now what is conditionals? As the name suggests, conditionals refer to some condition. If we keep some condition that if you do like that, this will happen. So means there is a condition. So that means verbs that are conditional. Clauses आ जाते हैं इसमें. It takes the main clause. Like, conditions are the structures that establish what will happen if a certain event takes place or if a certain action is performed. These are the structures. ये एक structure है. इसमें क्या पता चलता है? What will happen if a certain event takes place? जब कोई एक event होती है, it takes place, action takes place. If a certain action is performed, means कोई action हुआ. And that means if certain condition is true, the certain result occurs. तो means इसमें condition है कि अगर ये action ऐसे हुआ तो इसका result ऐसा होगा. Means certain condition is true. कुछ हद तक you are sure about कि ये condition अगर true होती है तो इसका जो result है, जो इसका outcome है, वो ये निकलेगा. तो यहाँ पे condition आ गई ना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. If clause आ गया ना. If you will run fast. Now if I say if you run as fast as a sprinter, you will win the championship. Now here the if clause is there कि अगर आप sprinter की तरह तेज भागेंगे तो क्या होगा? Then you will win the championship. This is the main clause. ठीक है ना? In the above conditional sentence, इसको हम conditional sentence बोलेंगे क्योंकि इसमें condition है. Condition दी हुई कि if you will do this, this will happen, the result will this. The clause if you run as fast, ये वाला clause जो है, as a sprinter lays down the condition. यहाँ पे इस clause में condition आ रही है for the outcome expressed in the clause, और उसका outcome क्या निकल रहा है? ये outcome means result. So it is very clear that if you will run as fast as a sprinter, the condition is this. So what you will do? You will win the championship. तो तभी आप championship win करेंगे. The clause that conveys condition and begins with if. जौन सा clause condition रखता है and if it begins with if, it is called if clause और conditional clause. तो हम इसे या तो conditional clause बोलेंगे या फिर बोलेंगे if clause. And the clause that conveys the possible outcome, और जो ये वाला क्लॉज है जिसमें आपको रिजल्ट का पता चलता है, आउटकम का पता चलता है, इसमें आपको पता चल रहा है ना रिजल्ट क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज. ये मेन क्लॉज हो जाएगा जिसमें आपको रिजल्ट का पता चल रहा है, आउटकम का पता चल रहा है, और ये हो जाएगा हमारा इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज जिसमें की कंडीशन रखी गई है. आई होप इट इज क्लियर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज कंडीशनल्स. 4 टाइप्स ऑफ कॉमनली conditionals यूज होते हैं. दे आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी. और उनमें मेन डिफरेंस कहाँ है बच्चे? डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी. कहाँ गए हम लोग? यस, वी वर हियर ऑन द डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी इम्प्लाइड. और उनमें कंडीशंस, उनमें डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ डिफरेंस है डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी. कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी डिग्री पे ये 4 जो हमारे कंडीशनल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं. फर्स्ट कंडीशनल में अगर इतनी डिग्री पे हुआ है काम तो उसका रिजल्ट ये होगा. सेकंड में अगर ये इतनी डिग्री पे पॉसिबिलिटी है तो उसका आउटकम ये होगा. समझ आ रहा है आपको? देयर आर 0 कंडीशनल
first conditional, second conditional and third conditional. So these are 4 conditionals. Zero conditional जिसमें कोई condition नहीं होती. You are certain about that thing that ये तो होकर ही रहेगा. First conditional, second and third conditional. So these are 4 type of conditional sentences. Now first of all we'll talk about the zero conditional fact. So you will start writing from here. Give the title, chapter name and number of the chapter, verb conditionals. Then you write the definition and you write up till here this part. यहाँ तक आप लिखेंगे पूरा, ठीक है, कॉपी में लिखकर. सो उसके बाद आप ये भी लिखेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा आपको. देन यू विल कम टू जीरो कंडीशनल. फिर आप इसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एंड इसका एक एक एग्जाम्पल देंगे. जीरो कंडीशनल क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं जो ट्रू हैं, उनमें आपको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है. फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं. जैसे जीरो कंडीशन डिस्कसेस एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. जीरो कंडीशन में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. आपको मालूम है ये सर्टन है, ट्रूथ है, फैक्ट है. एब्सोल्यूट मीन्स परफेक्ट, यहां कोई चांस नहीं है आपका कुछ भी गड़बड़ होने का. तो मीन्स इट्स एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी. तो रिजल्ट ऑफ द कंडीशन भी क्या होगी? ऑलवेज ट्रू. तो रिजल्ट क्या होगा उसका? हमेशा ट्रू ही होगा. सो द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जीरो कंडीशनल आर साइंटिफिक फैक्ट्स. तो साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं? दे आर प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड कि अगर ऐसा होगा तो उसका आउटकम ये निकलेगा. ठीक है ना. अब वो जैसे न्यूटन का लॉ हम पढ़ते हैं, क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना. और ये सब आते हैं हमारे एब्सोल्यूट ट्रूथ्स में, साइंटिफिक फैक्ट्स में. जीरो कंडीशनल क्या डिस्कस करता है? एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, जहां पे आपको कोई डाउट का चांस नहीं है, सर्टन है आप उस चीज के लिए, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा ट्रू निकलेगा. और द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जीरो कंडीशनल्स आर साइंटिफिक फैक्ट्स. तो इसमें हमारे जीरो कंडीशनल्स में ज्यादातर साइंटिफिक फैक्ट्स आते हैं. नाउ वी कम टू द एग्जांपल. नाउ दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट दैट इफ यू कूल द वाटर टू 0 डिग्री, अगर आप वाटर को इतना ठंडा करेंगे, आप फ्रीजर में रखते हैं, आइस को रखते हैं ना फ्रीजर में, तो उसमें क्या होता है? इट टर्न्स टू आइस, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है फ्रीजर का वो 0 डिग्री के आसपास होता है. दैट इज वाई इट टर्न्स इनटू आइस. सो इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट. सो दिस इज अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस. क्लियर? जीरो कंडीशनल्स देयरफॉर डू नॉट डील विद द फ्यूचर और द पास्ट. तो जो जीरो कंडीशनल होते हैं ना बच्चे, नाइदर दे डील विद द फ्यूचर नॉट द पास्ट. इनका कोई मतलब नहीं है पास्ट या फ्यूचर टेंस से. दे सिंपली डील विद द फैक्ट्स. इनमें सिर्फ फैक्ट्स आते हैं. ठीक है. नो dealing with the future tense or the past tense. The adverb if in these sentence conditionals can be replaced with when. जैसे here if is used ना, तो we can replace it with when also. अगर मैं बोलूँ when you cool water to 0 degree it turns into ice, because it's a universal truth, it's a scientific fact कि अगर आप वाटर को यहाँ तक कूल करेंगे 0 डिग्री तक तो क्या होगा? It will turn into ice. It's a fact. तो if can be replaced with the when. So if I say when you cool water to 0 degree it turns into ice. So one and the same thing, there is no difference. So there is no condition. The result is certain. Verb tense in zero conditional. Now if clause हमारा, if clause क्या? If you cool. कौन सा tense है ये? Present tense. Cool. ठीक है ना. फर्स्ट फॉर्म लगी है. तो मेन क्लॉज हमारा ये है ना, आउटकम, वो भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा. तो मीन्स इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं आता है. इफ क्लॉज भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में है और मेन क्लॉज भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में है. देयर इज नो चेंज इन द टेंस. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ विल डू द एक्सरसाइज. Supply the correct form of verb given in the brackets to complete the sentences. If you heat, क्योंकि हमने इसमें टेंस तो चेंज करना ही नहीं है. देयर इज नो चेंज इन द टेंस. राइट. तो सिंपल प्रेजेंट में ये भी, इफ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में, तो मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट. इफ इट रेन्स the grass gets
gets wet. If it, be की फॉर्म लगानी है. If it is winter, you feel cold in North India. ठीक है. विंटर्स में नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? कोल्डनेस ही होती है, क्योंकि वहां विंटर सीजन चल रहा होता है. सो इफ इट इज विंटर, यू विल फील कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है. इफ यू ईट ऑयली फूड्स, यू बिकम फैट. सिंपल. ये फैक्ट्स हैं बच्चे. इफ यू विल हीट आइस, द आइस विल मेल्ट. इट विल मेल्ट. इफ इट रेन्स, रेन होगी तो ग्रास भी गीला होगा. If it is winters, so you will feel cold. It is a fact. If you eat oily food, you will become fat. And if you turn on computer, it boots. तो ये जो क्या है, ये सारे ये आपके जीरो कंडीशनल्स हैं. These are the facts. ये facts हैं. There is no change in them. कोई change नहीं है इनमें. दोनों तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट लगेगा. Now we come to the first conditionals. ठीक है. Now you will write first conditional. Write the definition. The first conditional is used to talk about the future events that might happen. First condition में हम क्या करते हैं? We talk about the future events जो कि हो सकती हैं. Might happen. Might possibility है. It uses the present tense to discuss the possible future events. तो यहाँ पे ये future events के बारे में बात करेंगे तो वहाँ present tense use होगा. इन दैट केस द आउटकम इज रियलिस्टिक. तो जो रिजल्ट होगा वो बड़ा रियलिस्टिक होगा. अब देखते हैं एग्जाम्पल्स. नाउ लुक एट. इफ इट रेन्स, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रेजेंट टेंस में. इफ इट रेन्स, प्रेजेंट टेंस, वी विल हैव टू कैंसल द पिकनिक. और जो हमारा ये वाला मेन क्लॉज है, आउटकम क्लॉज है, वो किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस. वो चेंज हो जाएगा. इफ क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, फर्स्ट कंडीशनल में. इन फर्स्ट कंडीशनल, इफ क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट टेंस, तो मेन क्लॉज विल बी इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. इफ इट रेन्स, वी विल हैव टू कैंसल द पिकनिक. इट इज बट ऑब्वियस. यू कांट गो आउट इन रेन, राइट? सो इट इज क्वाइट रियलिस्टिक. द रिजल्ट क्या है? रियलिस्टिक ही होगा ना बच्चे. अगर रेन होती है तो आप बाहर कैसे जाएंगे? तो रिजल्ट भी उसका, यू हैव टू कैंसल द पिकनिक. So the result is also realistic, and here the main clause will change its tense into simple future. If you come with me, present tense, come. I will make it worthwhile for you. I will make it worthwhile. तो अगर आप मेरे साथ आते हैं तो मैं आपके लिए उसे worthwhile means, आप worthwhile होता है कि आना आपका जो है वो worth हो जाएगा. मीन्स आपको कोई उससे दुख नहीं होगा कि मैं क्यों आया. वर्थवाइल इसको बोलते हैं. इट विल मेक इट वर्थ, आई विल मेक इट वर्थवाइल. तो यहाँ हियर इट इज द प्रेजेंट टेंस, दिस इज द प्रेजेंट टेंस, एंड दिस इज सिंपल फ्यूचर. ठीक है ना. इफ आई गो अब्रॉड, अगेन प्रेजेंट टेंस. ये प्रेजेंट टेंस में है इधर. इफ क्लॉज, आई विल गेट समथिंग बैक फॉर यू, तो ये आ गया सिंपल फ्यूचर. आउटकम, आई विल गेट समथिंग बैक फॉर यू. अगर मैं अब्रॉड जाता हूं तो मैं आपके लिए कुछ जरूर लेकर आऊंगा. इफ यू वेट, प्रेजेंट टेंस, यू कैन गो बैक विद हिम. तो आप टिल 1 PM यू कैन गो बैक. तो यहाँ पे हमने कैन लगा दिया. अगर आप 1 o'clock तक वेट करते हैं, देन यू कैन गो बैक विद हिम. इट इज ऑल्सो इन, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज. Supply the correct form of verb given in the brackets. If you complete, this thing will come in the present tense. If you complete your work, I will take you to fun land. Clear? यहाँ पे हमने simple future, ये simple future में आएगा और ये present tense में आएगा. If you does not hurry, if you do not hurry, does not mean do not. If you do not hurry, if you do not hurry,
You will miss the bus. If it pours, cats and dogs. Do you understand this sentence? If it pours, cats and dogs means अगर बारिश बहुत तेज होती है तो हम इसको इस फ्रेज में कहते हैं pours, cats and dogs. We will not play. ठीक है ना? कंडीशन आ गई. यहां पे हम विल भी यूज कर सकते हैं, कैन भी. देखो, इफ इट नॉट हरी यू कैन मिस द बस या यू विल मिस द बस, दोनों. इफ शी इज, बी की फॉर्म है ना, इज लेट अगेन, द टीचर विल नॉट बी हैप्पी. ठीक है. इफ माई फादर डज नॉट टर्न्स अप, I will ask my mother to take me to the zoo. तो अगर मेरे फादर नहीं आते हैं, if it does not turns up, I will ask my mother to take me to the zoo. So here we complete up till here. So tomorrow we will start from here. ठीक है? So all of you complete your notebooks up till here. Means start writing about this lesson.